Hello dear students, how are you? I hope you are enjoying my online classes. So dear class 9 students, in yesterday's lecture I discussed with you the revision session of first half of chapter 8, that is motion. In today's lecture I will cover the remaining topics as a revision for you, and as you know that your term 1 syllabus is chapter 8 and chapter 9. So these three topics are left from yesterday's discussion from chapter 8. And what topics we have discussed? We have discussed distance, displacement, velocity, average velocity. We discussed about acceleration, and we discussed about uniform and non-uniform motion. So today we will start with our first topic, that is position time graph. So what is a graph? Position time graph and velocity time graph. What is a graph? A graph is a two-dimensional representation of two variables which gives us the value of both variables at any particular instant, or the value of one variable when the value of other variable is known. For example, first we will study position time graph. The first case of position time graph is for stationary objects. As for stationary objects, the velocity of the object is 0. So in case v is equal to 0, we will also observe the same graph. As the velocity is 0 and object is stationary, we can say that position of object is constant or same. If we will draw such graph, if I will take position on vertical axis and time on horizontal axis, then I know as position of the object is constant, which means object is not changing its position. For example, an object A is stationary at P is equal to 4 meter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. An object which is stationary, P is in meters, at 4 meter, will not change its position. As time will pass, the object is still at 4 meter position and it is not changing its position, then this object is said to be in rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और चाहे हमारे पास जो टाइम है वो बीतता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड 6 सेकंड. तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जब t0 था तो भी ऑब्जेक्ट वहीं था 4 मीटर पे, t1 सेकंड आया तो भी ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे था, t2 सेकंड आया तो भी ऑब्जेक्ट 4 सेकंड पे था, t3 सेकंड हुआ तो भी ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे था. तो जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार 4 मीटर पे बना हुआ है. तो दिस इज, लेट मी शो इट इन डिफरेंट कलर फॉर यू. लेट अस से रिप्रेजेंट ग्राफ इन रेड कलर. तो ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका स्टेशनरी पार्टिकल का ग्राफ बन गया जिसकी पोजीशन 4 मीटर कांस्टेंट है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि पोजीशन 4 मीटर ही ले, आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं. एनी line in PT graph which is parallel to time axis represents the position time graph of a stationary object. Let us move on to the second graph. B point, or the second graph in position time graph, is for constant velocity. V is not equal to 0. V is equal to 0 वाला ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? अगेन आई एम टेकिंग पोजीशन हियर इन मीटर एंड टाइम हियर इन सेकंड्स. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter and so on. And similarly 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and so on. So what you are observing in this graph, let us first draw the graph for a positive velocity. Let us say v is equal to 2 meter per second. So it is indicating that object is changing its position at a rate 2 meter per second, because rate of change of position is also known as velocity. We know this. So let us say initial velocity of object is 0.
So which means at t is equal to 0 object is at origin. Then as the velocity of object is 2 meter per second, at the end of first second object will be at 2 meter position. With the same velocity at the end of second object will be at 4 meter. So this is clearly showing that position of object is changing. Every 1 second position is being changed by 2 meter. Another second passed, position is again changed by 2 meter. So that is what known as velocity, and the position time graph for constant velocity will be a straight line like this. So this graph is representing positive constant velocity, that is constant velocity. It is also known as uniform motion. If at any particular time, say 4 seconds, you want to find out the position of object, you can find out by simply having the formula position is equal to velocity into time. So we know that velocity is 2 meter per second, then at t is equal to 4 seconds, position is going to be 8 meter. In the same graph, if the velocity of object is decreasing and it is starting from some positive velocity, from some positive position, say 6 meter, and the velocity of the particle is decreasing, so that we will obtain the graph in same manner, but this time the direction of graph will be towards negative of the position axis with increase in time. So again, by the same conversation, let us say at t is equal to 0. Let me show it with different color. Let me use it blue color for showing this. So let us say at t is equal to 0, the object is at 6 meter, and this time with blue color the velocity is minus 2 meter per second. So if velocity is minus 2 meter per second, then at the end of first second my object will be at 4 meter position. My object will be at 4 meter position. At the end of second, as the velocity is minus 2 meter per second, object will be at 2 meter position. And in the same manner, at the end of third second, the position of object will become 0. So this graph, which is represented in blue line, is indicating the graph of velocity is equal to minus 2 meter per second. At this point, let me define inclination. That is the graph of positive velocity. If we will consider this angle starting from the x-axis or the time axis in anti-clockwise manner, this angle theta is known as inclination of this graph. Similarly, for this blue graph for negative velocity, this angle which is greater than 90 degree, let us say theta 1 and theta 2. So theta 1 is the inclination of graph of A with positive velocity, and with theta 2 is the inclination of graph having negative velocity. So angle is, when angle is greater than 90 degree, the value of velocity is negative, and for angle less than 90 degree, value of velocity is positive. If theta is equal to 0, which again we will reach on our first graph, in which when graph is parallel to time axis, it is at rest or 0 velocity. So this is very important point. Next we are having position time graph for positive and negative accelerations. Position and time graph. If your velocity is increasing, now the third point, when we are having some non-zero value of acceleration, see the third case, when we are having A is not equal to 0, A is some positive constant or A is some negative constant, which is also known as non-uniform motion. So in position time graph, what you will observe a graph like this, which is indicating that with every passing second
change in position is increasing. Okay, let me draw more clearly for you. Yes, like this. So you are observing with every passing second change in position is increasing. Like for first 2 seconds there is very small change in position, then for next 2 seconds there is a huge change in position. So what you are observing, unlike constant velocity, जैसा आपने पिछले केस में देखा constant velocity के मुकाबले पहले आपने ग्राफ में देखा कि हमारा 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, एक कांस्टेंट रेट से पोजीशन चेंज हो रही थी। लेकिन इस ग्राफ में आप ये देखोगे जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि पहले 2 सेकंड में आपकी थोड़ी सी पोजीशन कवर हुई, फिर अगले 2 सेकंड में आपकी बहुत ज्यादा पोजीशन कवर हुई। अगर आप नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए बनाएंगे तो आपका चेंज इन पोजीशन और भी ज्यादा आएगा। ऐसा कब पॉसिबल है कि हर 2 सेकंड के बाद जो हम डिस्टेंस कवर देखें ऑब्जेक्ट का वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन when your velocity is increasing. And conversely, on the other hand, we are having a graph for negative acceleration which will go like this. Your constant negative acceleration. जैसा हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऑब्जर्व किया, अगर इसके अपोजिट हम ऑब्जर्व करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन में, तो हम देखेंगे कि देखो पहले 2 सेकंड के अंदर आपका जो चेंज इन पोजीशन है वो आपका मैक्सिमम है, लेकिन फिर अगर आप नेक्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नाउ द चेंज इन पोजीशन इज डिक्रीजिंग। सो इनिशियली चेंज इन पोजीशन बहुत ज्यादा है और बाद में चेंज इन पोजीशन बहुत कम है। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्पीड है कहीं ना कहीं वो कम हो रही है। जब गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही है और वो ब्रेक्स मारती है तो पहले 2 सेकंड का डिस्टेंस आखिर के 2 डिस्टेंस से ज्यादा होता है, विच इज इंडिकेटिंग कि हमारी जो वेलोसिटी है व्हीकल की वो डिक्रीज हो रही है, विच इज इंडिकेटिंग नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपसे 3 ग्राफ डिस्कस किए पोजीशन टाइम के, स्टेशनरी, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी which is also known as positive and negative acceleration. In the same manner we are having 3 graphs, velocity time graph, in which the first case is for v is equal to 0 or we can say stationary objects. For stationary objects, your velocity time graph is very easy to draw. For all stationary objects, velocity is equal to 0. So all the graph will be here on the time axis, which is representing that particle is having 0 velocity. So all the graphs which were in position axis parallel to time axis, doesn't matter at which position, 2, 4, 6, 8. If they are parallel to time axis and they are representing 0 velocity, they all will shrink to time axis. वो सारे ग्राफ हमारे टाइम एक्सिस पे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे रेस्ट में है और उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही विद टाइम। यहाँ पे अब जो हमारा पोजीशन टाइम का सेकंड केस हमने स्टडी किया था, वो सेकंड केस हमारा इधर एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, बिकॉज ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यूज हैं। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो जो इससे पहले हमने ग्राफ डिस्कस किया था कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का, व्हिच वाज गोइंग लाइक दिस इन पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट ग्राफ विल कम लाइक दिस इन वेलोसिटी टाइम डोमेन, कांस्टेंट प्लस 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। और जो ग्राफ हमने नेगेटिव वेलोसिटी का डिस्कस किया था, जो ऊपर से नीचे जा रहा था, जिसका इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री आया था, वो ग्राफ आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 मीटर पर सेकंड और -2 मीटर पर सेकंड। सो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है -2 मीटर पर सेकंड के लिए, और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है +2 मीटर पर सेकंड के लिए। इसके साथ ही अगर मैं आपको बी केस पढ़ाऊं, जिस बी केस में आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और पहले हम उसको पढ़ाते हैं a इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट और पॉजिटिव है, हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं एक्सेलरेशन की। लेट अस से एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। तो जैसा ग्राफ आपका 1 मीटर पर सेकंड के लिए पोजीशन टाइम में मिलेगा, वही सेम ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए मिलेगा। ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे पोजीशन डिवाइड बाय टाइम आपका
वेलोसिटी होता है, ऐसे ही वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी से हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड आपकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर एट द एंड ऑफ सेकंड सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसका इंक्लिनेशन आपको 45 डिग्री मिलेगा। दिस 45 डिग्री वैल्यू इज फॉर पर्टिकुलरली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल में मिलेगा। अगर ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड से कम होगा तो ये ग्राफ आपको 45 डिग्री से नीचे मिलेगा इंक्लिनेशन पे। इसके साथ ही अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ मेरे से पूछना चाहते हैं कैसे बनेगा, तो a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड अगर मैं लूं, और अगर इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 से बनाएंगे तो वो ग्राफ मुझे नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल पे मिल जाएगा। और यही ग्राफ अगर हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से बनाएंगे, सपोज 6 मीटर पर सेकंड से, तो वो ग्राफ मुझे सेम एंगल पे नीचे की तरफ जाता हुआ मिल जाएगा। दोनों ग्राफ का इंक्लिनेशन अगर आप देखेंगे तो इंक्लिनेशन आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन से जब हम इंक्लिनेशन लेते हैं तो अगर हम एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन लेते हैं और हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो नेगेटिव इस एंगल की वैल्यू या फिर पॉजिटिव इस एंगल की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएंगी जब आप इनका टेंजेंट थीटा लेंगे। टेंजेंट थीटा भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल फॉर दैट, बट बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस लाइन ग्राफ का इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री है वो ग्राफ आपका नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका इंक्लिनेशन आपका लेस देन 90 डिग्री है वो ग्राफ आपका पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है हमारे पास डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया ले लेते हैं तो वो जो एरिया है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि एरिया आपको किसी भी दो वेरिएबल के ग्राफ में उन दोनों ग्राफ्स की प्रोडक्ट देगा। जैसे हम एरिया की बात पोजीशन टाइम ग्राफ में भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन इनटू में टाइम कोई क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन अगर हम वेलोसिटी इनटू टाइम की बात करें तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो लेट अस ड्राइव आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग एरिया अंडर ग्राफ। बाय ग्राफिकल मेथड। तो अगर आप यहां पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इमेजिन करेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है एंड इन सम टाइम t ये वेलोसिटी बढ़ के v हो जाती है, तो आपको इस तरीके से ये आपके पास ग्राफ मिल जाएगा। मैं डॉटेड लाइन से इसका नीचे वाला एरिया शो करता हूँ और इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया अंडर ग्राफ लेते हैं तो वो हमारे को डिस्प्लेसमेंट देता है, इन दोनों की प्रोडक्ट देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाले ग्राफ में जो ये हमने एरिया लिया है, ये एरिया दो चीजों से मिलकर बना है, एक ये वाला रेक्टेंगल और एक है हमारे पास ये ट्रायंगल जो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास बना है। तो हम सबको पता है अगर हम ये टोटल एरिया लिखना चाहते हैं तो ये एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ये हमारे पास बना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम सबको पता है इक्वल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास इस ट्रायंगल का जो बेस है, ये ट्रायंगल का बेस इक्वल है टी के, तो इसलिए हम इसको टी लिख देंगे। इंटू में जो हाइट है ये ट्रायंगल की, आपको पता है ये यू लेवल है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक v है और ये यहां से लेकर यहां तक u है। तो जो ये बीच का हमारे पास ट्रायंगल की हाइट हुई, ये हमारे पास हो गई v माइनस यू। और इसमें जब हम ऐड करेंगे हमारे रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल की वन साइड u है हमारी और अदर साइड t है, तो u इंटू टी। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अब यहां पर एक सेकंड के लिए होल्ड करके मैं आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा
जो हमने कल लेक्चर में पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v माइनस यू डिवाइड बाय t। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम t को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, at is equal to v minus u, or I can say v is equal to u plus at, which is also known as first equation of motion। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर इस इक्वेशन से मैं v माइनस यू की वैल्यू at अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला आ जाएगा, ut प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू जो मैं 80 पुट करूंगा, तो 80 इंटू में t 80 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सिमिलरली मुझे पता है कि जो ग्राफ की जो ये शेप बन रही है हमारी, लेट अस से ओ ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है, और एक ट्रेपेजियम का एरिया हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो होता है आपका सम ऑफ पैरेलल हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारा बन जाएगा v प्लस यू, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो है दैट इज इक्वल टू t। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर t की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगेन फ्रॉम आवर दिस इक्वेशन v माइनस a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई t। अगर मैं t को इधर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में, तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a, और ये वाली वैल्यू t की अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ v प्लस यू इंटू में t की मैं वैल्यू पुट करूंगा v माइनस यू डिवाइड बाय a। अब हम सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो हमारे पास v प्लस यू और v माइनस यू है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई s की। इफ वी विल टेक 2a ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 2as is equal to v square minus u square, which is nothing but our third equation of motion। तो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन। सो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन में यू कैन टेक अ ब्रेक हियर एंड यू कैन गो बैक, रिवाइज, टेक स्क्रीनशॉट while I will discuss few points of elementary idea of circular motion with you, and then your chapter 8 is over, and in next lecture I will give you revision of chapter 9. So our third and last topic of this video lecture is elementary idea of circular motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कल के अलोंग मूव करता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, और आपके सिलेबस में जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में है, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट around the circle, and say r is the radius of this circle, then there are two interesting points which you must note about this, that when an object is moving on a circle, its direction is always changing. Like at this point object is moving in this direction, but velocity is in this direction right now, but the object will go in circular path in other direction. So direction of the object is continuously changing, and by Newton's first law of motion we know that for change in direction a force is required. So there is always a force which is required for keeping an object in circle, and that is known as centripetal force. The magnitude of that centripetal force is equal to mv square divided by r, which is known as centrifugal force, where m is the mass of object which is under circular motion, v is its magnitude of velocity, and r is the radius of circle.
If this circle is having r radius, then the circumference of the circle is going to be, yes, right, 2 pi r. 2 pi r is going to be the circumference of this circle, which is the distance which is covered by this object. And if it is moving at v velocity, we know that time required for completing the circle is distance divided by speed. So t is equal to 2 pi r by v. So this is time period of circular motion, 2 pi r by v. And one more point, that inverse of the time period is also known as frequency, which is represented by f or symbol nu. The unit of frequency is hertz. Okay, and as a force is continuously working, so there is a centripetal acceleration, and we can also remember that value of centripetal acceleration is v square by r. Hence your uniform circular motion, despite uniform is coming in its name, uniform circular motion, in actual this is your non-uniform motion, because in this there is always acceleration, there is always force. With these points I'll finish my lecture, and you are welcome for having your doubts in the online classes. Like always, thanks for watching and take care.